Hello everyone, welcome back to my channel. This is Priyasha Das and I am making this video being very excited and happy that I have got more than 81 responses in a mere 12 hours of period, and I'm really tensed also that मैं जितने जल्दी जल्दी कैसे बनाऊंगी इतने सारे. But then definitely don't worry, since I have taken this up, I'll definitely finish it successfully and I'll be sharing the personalized planner with each one of you personally on your given email ID. So do not worry about that. I'll totally take care of it. But I don't want you people to get confused. So therefore, there's a short video for all those who have submitted their routine and want me to make a personalized planner for them. आप लोगों के लिए छोटी सी बात है जो आपको समझनी है before you actually go forward and do try to understand the planner I send you. So यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती. सो इट इज PS फॉर अस. ओके, इन्होंने बेसिक कुछ कुछ फंक्शंस, जैसे मैं जितनी क्वेश्चंस पूछ सकती थी, आई आस्क्ड दोस क्वेश्चंस टू देम and based on that I made something. But then there are a couple of more other factors based on which our learning pace and other different things depends, correct? So based on that मैंने एक चीज प्रोसेस बनाई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, so that this planner gives you the best of the best results. Okay, so let's get started. The very first thing is, when I'm making a 80 days ka planner, I am making it a fixed point that I don't want you to learn anything new in the last 20 days. Last 20 days में आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है, इसलिए मेरा जो कोर प्रिपरेशन फेज होगा वो होगा द कमिंग 2 months, दैट इज द 60 days इन योर हैंड, जहां आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि अगर आप अपने आप को एक बेटर फ्यूचर गिफ्ट करना चाहते हो, then you have to be serious in the coming days. And in this I have divided the entire preparation phase into chunks of 2 weeks or 15 days, whatever you find convenient to go by. ठीक है, इसको 15 days के चंक में डिवाइड करने का रीजन क्या है? सो इफ आई टेक 2-3 people who have given the exactly same आंसर्स इन द गूगल फॉर्म विच आई आस्क्ड यू टू फिल इन, लाइक आप ग्रेजुएट हो, आपने इंजीनियरिंग की है, आप लास्ट 3 महीने से कम टाइम स्पेंड कर चुके हो कैट की प्रिपरेशन में, अभी तक कोई मॉक नहीं दिया, आपको खुद का कोई अच्छा एनालिसिस पता नहीं है, आपको बस ये पता है कि कौन से सेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल लगते हैं एंड किन सेक्शंस में आप थोड़ा बहुत अच्छा काम कर लेते हो, एंड आपकी लर्निंग स्टाइल कैसी है, किस एनवायरनमेंट में आप लर्न करना पसंद करते हैं और आपकी मोटिवेशन क्या है. इस तरह के ब्रॉड एस्पेक्ट्स कई लोगों के लिए मैच कर सकते हैं, बट उनका लर्निंग स्टाइल या लर्निंग पेस स्टिल मैच नहीं कर सकता. बेस्ड ऑन दैट I have broken down their entire day or their schedule into 15 days का चंक, जहां कोई 15 days की जगह उस चंक को 10 days में कंप्लीट कर सकता है, बेस्ड ऑन हाउ क्विक यू आर इन ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, लेट्स से, एल्जेब्रा. एल्जेब्रा का लीनियर इक्वेशंस कुछ लोगों के लिए, अगर मैं आपको एक टारगेट दूं कि आपको 70 क्वेश्चंस करने हैं, तो 70 क्वेश्चंस में कुछ लोगों के लिए ये काफी इजी होगा जो शायद 2 days में कंप्लीट कर ले, बट कुछ लोगों को हो सकता है कि लीनियर इक्वेशंस ही कंप्लीट करने में 4 days लग जाए. तो इस तरह की चेंजेस के लिए मैंने आपको 15 days का स्केड्यूल दिया है. सो इन 15 days यू आर सपोज टू फिनिश इट ऑफ. यू आर सपोज टू ऑल्सो कीप सम बफर डेज बिटवीन, लाइक 15 days में bare मिनिमम बफर डेज आप 2 रखना, so that in case there's an emergency you are able to catch up. There should not be any problem over there. Now, talking about how to divide your schedule. So if I see this, that you have 4 hours of preparation for you. So इन्होंने दिया था कि मैं कुछ भी हो जाए 4 hours की प्रिपरेशन ही कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने 75% ऑफ द टाइम उनके डे का इस वे में डिवाइड किया है, that it is giving us DILR का preparation. So over here what we need to focus on is the area where we are not doing really great. So if we are not doing really great in an area, we should dedicate 75% of our day's time to that, and 25% of our day's time should be dedicated to the area which we are doing pretty good at or we are able to match up. जैसे उनके आंसर्स के अकॉर्डिंग VARC was a level which they were able to do nicely. So I have given 25% of the day, जैसे कि दिन का 1 घंटा भी अगर वो दे पाते हैं तो it will be really great for them. Now उनका वीकली ब्रेकडाउन देखें तो उनका वीकली ब्रेकडाउन आता है डे 1 to 15, जहां पर I want them to focus on these topics of QA DILR and daily practice of VARC. Alternate days में वो पारा जम्बल्स, ऑड सेंटेंसेस एंड समरी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एडिशनली मैंने उन्हें वीकेंड्स पे ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन भी प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, बिकॉज दिस पर्सन विल आल्सो बी अपेयरिंग फॉर द अदर ओमेट्स. सो कीपिंग दैट इन माइंड, दिस इज दैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट,
उनके लिए मैंने रेकमेंड किया कि आप वीक एंड्स पर थोड़ा सा उस सिलेबस को भी कवर अप करते चलो। वैसे ही अनदर चंक ऑफ 15 डेज में मैंने इंटरमीडिएट टॉपिक्स रखे हैं, फिर एडवांस टॉपिक्स मैंने 31 से 45 डे के बीच में रखा है, जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। यहाँ पर आपको सिलेबस का सारा टॉपिक नहीं मिलेगा, एंड द रीजन फॉर दैट इज इसमें भी मैंने वेटेज को इंक्लूड किया है। और वेटेज को, like there were some factors which I considered the topics which he is not comfortable in. I considered the weightage of those topics in the past 10 years of the CAT paper, and based on that I have recommended these chapters to be done in the same order as recommended here, so that iska foundation, intermediate और advanced सारा कवर हो जाए। ओके, एट द सेम टाइम संडे को मैंने मॉक्स के लिए रखा है, बट दैट डजंट मीन कि ये बंदा सेक्शनल्स या टॉपिक टेस्ट नहीं देगा। आई हैव बीन टेलिंग दिस पर्सन एंड आई विल टेल यू पीपल ऑल्सो कि आप एक सेक्शनल मॉक हर 3 दिन में स्पेसिफाई कर दो। अगेन दिस नंबर विल वैरी फॉर यू गाइज, तो अगर आपने ये गूगल फॉर्म नहीं भरा तो आप भर सकते हो, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी मॉक्स यू हैव ऑलरेडी गिवन और व्हाट वाज योर लास्ट टाइम स्कोर एंड थिंग्स लाइक दैट, ये नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है अगर आप पिछले बार रिपीटर हो एंड आपको 98 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल भी आ चुका है, तो हो सकता है कि मैं आपको सेक्शनल मार्क्स लेने के लिए भी हर 3 डेज में नहीं बट हर 5 डेज में बोलूं। सो दिस थिंग कैन चेंज। ओके, सो बी वेरी क्लियर ऑन दैट एस्पेक्ट। नाउ one concept which I would love this person to do in the last 10 to 20 days is फोकस्ड रिविजन। लाइक लास्ट में मैंने इनको फोकस्ड रिविजन के एरियाज बताए हैं, कौन कौन से एरियाज पे इन्हें फोकस करना है बेस्ड ऑन हिज करंट थिंग, बट ये टाइम टेबल फिर चेंज हो सकता है, क्योंकि बेस्ड ऑन हिज 60 डेज ऑफ परफॉर्मेंस एंड हिज करंट मॉक स्कोर्स हम ये पता लगाएंगे कि इनकी किस चीज में इंप्रूवमेंट हुई है, किस चीज में इन्हें फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो बेस्ड ऑन दैट लास्ट 20 डेज का प्लानर मैं इनके लिए अलग से भी बना दूंगी इन केस आई हैव द बैंडविड्थ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एडिशनल टिप्स। उन्होंने मुझसे एडिशनल टिप्स मांगे थे विथ रेस्पेक्ट टू कौन से मॉक सीरीज लेने चाहिए एंड कैसे मोटिवेटेड रहना है, थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने उनके लिए ये लिख के दिया है। बट हाँ, रेगुलर में मैंने टाइम IMS-CL इसीलिए रेकमेंड किया था बिकॉज आई फील दैट उनको अपना लेवल गॉज करना जरूरी है। बट अगर इफ ही वांट्स टू लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स देन ही कैन गो फ्रॉम द अदर सेट ऑफ मॉक्स ऑल्सो, जो मैंने उन्हें बॉटम में रेकमेंड किया है। मैंने इस तरह का टेबल भी उनके लिए बना दिया है इन चंक्स ऑफ 15 डेज ईच विथ नोट्स बेस्ड ऑन इट, सो दैट इनको पता रहे कि किस दिन फुल लेंथ मॉक देना है, किस दिन फुल लेंथ मॉक देना है, एंड उनकी आइडिया के हिसाब से लाइक ही कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड एक्चुअली पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ हिज स्टडी टेबल सो दैट ही कैन गॉज वेदर ही इज गोइंग ऑन द राइट लेवल और नॉट। ओके, सो बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट मेरी सिर्फ इनसे ही नहीं किसी से भी है who would be following this planner would be that any topic, if you want to mark that topic as done or if you want to mark that this topic is completed, then you have to solve a minimum of 70 questions from that topic, जिसमें से 40 questions होंगे LOD 2 के, जो कि आपका general exam level questions है। 20 questions should be from LOD 1, जहां आपका basics and fundamentals clear हो जाए with the help of examples and डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपको ऑब्वियसली ओमेट के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। एंड LOD 3 के क्वेश्चंस फॉर योर मेंटल एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चंस सही बने, बट उसको कैसे बनाना है ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द बेयर मिनिमम विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू हियर। एनी टॉपिक टू मार्क इट एज डन यू हैव टू डू अ मिनिमम ऑफ 70 क्वेश्चंस, जिसका डूइंग स्पीड शुड नॉट बी मोर देन 3-4 मिनट्स पर क्वेश्चन। ओके, 4 मिनट्स से ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश मत कीजिएगा। So with this, I would like to conclude the video saying that अब आपके जितने भी लोगों ने responses भर दिए हैं उन्हें by within 2 days सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, प्लानर। तो आप अपनी emails चेक करते रहिएगा। I would be quickly sending you back. And with this, I would give you lots of blessings and love. I am really happy कि आप लोग अभी से इसको लेके इतना serious हो, and I wish कि आपकी ये dedication और focus exam के last day तक बनी रहे। टेक केयर, लव यू लॉट्स, एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो विदाउट फेल इसे शेयर और लाइक जरूर कर दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट यू नो दिस चैनल ग्रोज। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।